اب آپ ادبی دنیا پر اپنی کتاب بھی ریکارڈ کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ آڈیو بک ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ کافکا نام کی موبائل ایپلیکیشن پر بھی اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کتاب کے لیے انویسٹمنٹ کر کے آپ اسے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات کے لیے ہم سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے۔ میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی چیچک کے داغ۔ اب وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کسی کی تنقیدی نگاہ نہیں پہنچتی تھی۔ لوہے کے بڑے کیلوں والے بلند شہری پھاٹک کے پیچھے، جہاں ڈھور کا سارا گوبر بکھرا پڑا تھا اور اس کی بدبو ماگھ کی دھند کی طرح سطح زمین کے ساتھ ساتھ تیر رہی تھی، جہاں اس کی بہن گلی کے کسی زچے کے لیے گائے کا پیشاب لے رہی تھی، لیکن سکھیا نے تو ان کا منہ بہلی ہی میں دیکھ لیا تھا، جیسے اس کے میکے ماتن ہیل کی موٹی ریت پر بارش کے بڑے بڑے قطرے پڑے ہوں۔ اس نئے گھر کا رہن سہن کتنا پرانا تھا اور یوں بھی کچھ سوجھ والے ہاتھوں کا محتاج۔ دیواروں میں رنجیت شاہی چھوٹی اینٹیں بوڑھے کاکا کے دانتوں کی طرح اپنے مرے ہوئے جبڑوں میں علیحدہ علیحدہ اور باہر ابھری ہوئی تھی۔ دیواروں کی ٹیپ سن، ماش اور چونا برسوں ہوئے اڑ چکا تھا۔ ایک دیوار پر مٹی اور بھوسا ملا کر لیپن کیا گیا تھا، پھر اس پر چونا پھیر کر گیروئے رنگ سے بڑے بڑے اور بدزیب ناگری حروف لکھ دیے گئے تھے۔ بھنڈارے کے قریب ہنڈیا پر مہریا بیٹھی ایک بے محل اور بے سرا گانا گا رہی تھی۔ اپجس یعنی گناہ قیمت باندھو گٹھریا، بیچاری مہریا، وہ ان گناہوں پر نادم ہو رہی تھی جو اس نے کبھی نہیں کیے تھے، جو وہ کرنے کی اہل ہی نہ تھی، یا شاید وہ یہ گانا اس لیے گا رہی تھی کہ چھوٹے لالا کی شادی پر اسے بہت تھوڑا لاگ ہوا تھا۔ ارے او لالا، تو کیوں کھڑا ہو رہی ہے گوبر ماں؟ گھر کی اماں نے آواز دی۔ اس وقت بڑا لالا ناریل کا دم لگائے ہوئے صحن میں کھڑا اماں پر ہنس رہا تھا۔ اب رام نام کے بعد میاں نے کلی کر دی۔ بھلا کیا لابھ اس پوجا پاٹ سے؟ رام نام ہی کلی کر دیا۔ واہ ری اماں! چپ رے! گھر کی اماں نے ایک بھونڈی مسکراہٹ سے کہا، اور پھر پوجا کی آخری قسط پوری کرنے کے لیے بڑھیا نے پیتل کی ٹوٹی پھوٹی سی لٹیا اٹھائی اور صحن کے مبہوت برہمن پیپل کے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے پاؤں پر برف کا سا ٹھنڈا پانی گرا دیا۔ پیپل کانپ اٹھا، یا شاید یہ پروا کا جھونکا تھا، پھر پیڑ کے گھیر میں مولی کا سرخ اور زرد تاگا لپیٹ دیا۔ بڑے لالا کا چھوٹا لالا بہت نٹکھٹ تھا، اسے چھوٹے بڑے گلی گواہانڈ کے سب صاحب کہتے تھے۔ گھر کے سب لوگوں کے احتجاج کے باوجود اس نے ایک بیسا پلہ پال لیا تھا اور باپ دادا کا جنم بھرشٹ کر دیا تھا۔ صاحب اٹھا تو پلہ بھی ساتھ ہی۔ اٹھتے ہی پلے نے انگڑائی لی، منہ کھولا، زبان مچکائی، دھواں سا اڑایا اور صحن کے پیپل کے چرنوں میں پہنچ ایک ٹانگ اٹھا اپنے واحد طریقے سے پوجا کر ڈالی۔ سکھیا کے سر میں رات کے 100 میل کے چکر باقی تھے۔ لوری کی گھوں گھوں جھر ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور اسے گھیرے آ رہے تھے۔ بڑی نند نے چینی کی ایک پلیٹ میں لیموں کا اچار لا رکھا تھا۔ آہا چھی! سکھیا نے بیزار ہوتے ہوئے کہا، یہ لوگ چینی کے ٹینڈر استعمال کریں، انہی جھوٹے برتنوں میں کھانا کھاویں، ملیچ مسلمانوں کی طرح، چھی چھی۔ اچھی بہن جا تو ذرا، سکھیا نے قریب کھڑی ان کی بھانجی کو کہا، کوئی مراد آبادی کٹوریا نہیں تمہارے یہاں؟ اس میں تو لے آؤ تھوڑی سی چاٹ۔ متلی رک جائے ذرا، میں چینی وینی کے برتن میں نہ کھاتی۔ اور دلہن ناک چڑھا اپکائیاں لینے لگی۔ بڑی نند جی، میں خوش ہوئی، اماں تو بوڑھی ہو گئی، وہ تو جھوٹے برتنوں اور دوسروں میں فرق کیا دیکھے گی، لیکن یہ اب اس نیا کا کھویا آ گیا گھر ماں۔ نند نے آپ ہی پلیٹ اٹھائی اور ٹل گئی۔ بلند شہری پھاٹک کی اوٹ میں کھڑے وہ سکھیا کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انگریزی طرز کے بال کٹا رکھے تھے۔ نند کہہ رہی تھی، نکھلؤ سے بیا پاس کیا جے رام نے، گھر سے پرے شہر میں کنواروں کے مکان بورڈنگ میں رہتے تھے، جنیو بھی نہ پہنتے، سر پہ چوٹی بھی نہ رکھتے۔ سکھیا نے جی میں کہا، یہ ملچ ودیا ہے نا، یہ انگریزی یعنی انگریزی۔ اور پھر ان چیچک کے داغوں کا کیا ہوگا؟ جب یہ خوفناک منہ قریب آئے گا تو طبیعت بہت گھبرائے گی اور کوئی لیموں کا اچار کام نہیں آئے گا۔ سب سو رہے ہوں گے، سب کچھ مجھے اکیلے ہی بھگتنا ہوگا۔ کیا دیکھا ان لوگوں کا چاچا نے؟ مجھے گھور نرک یعنی دوزخ میں دھکیل دیا۔ اور پلنگ پر پڑی سکھیا سر زانوؤں میں دبا کر رونے لگی۔ محلہ ہجاری کی عورتیں ابھی تک دلہن کا کھرا کھوٹا پرکھنے آ رہی تھیں۔ دلہن کھری تھی، پانسے کا سونا،
जिस धर्म कांटे में कहो तुल जाए, उसे मुंह बिसूरे देखकर आप भी मुंह बिसूरने लगी। सच है, माँ बाप बड़ी दौलत है, कैसे छूट जाएं एक दिन में। एक औरत बोली। जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद वो औरत सुखिया से भी ऊंचे सिसकियां लेने लगी। सुखिया हैरान थी। उसने उस वक्त तो माँ बाप को याद नहीं किया था और उस अधक्कड़ औरत का निचला होंठ ऊंट के होंठ की तरह लटक गया। थोड़ी देर बाद उस अधक्कड़ को आप ही बियाह शादी के घर रोने का अशगुन महसूस होने लगा। अपने दुपट्टे से उसने आंखों का सील पोंछ लिया। दुनिया की यही रीत चली आई है बिट्टो, तू सुख यहाँ का मांग। तुम्हारे काका तो गौ रूप हैं और जय राम तो बेटियों जैसा बेटा है। जबान कहाँ है मुंह में, रात को रात कहे दिन को दिन, नाचेगा तेरे उसारे। आज बड़ा शुभ दिन है, घर की अम्मा बोली। गली में जो अमरतू है ना, उसके यहाँ बाला हुआ। 13 दिन हुए पंजाबियों के यहाँ बेटा हुआ। तभी वो आज गौतर यानी गाय का पेशाब नहलावे के लिए ले गई। ये फसल बेटों की है, बेटों की बहार है और शादियों की। इधर बेटा हुआ, उधर शादी हुई। अरे समुद्री की माँ, कहाँ रहा तेरा साहब। बड़ी बहू घर आई तो मैंने तेरा साहब गोदी डाला था। ऊपर तले 3 बेटे हुए। मंझली की गोदी में बिठाया तो टपक पहले साल लाला और दूसरे साल बिट्टो। लेकिन बिट्टो का बरी है, लाला से भी ज्यादा मोहवे। गोदी हरी चाहिए और कहाँ है वो, मैं उसे दुल्हन की गोद में बिठाऊं हूँ। सुखिया गठरी हो गई। बेटा और चेचक के दाग। गूजल ढोर खोलने के लिए आ गया था और एक कमीन लंगर लंगोटा कस सहन को फावड़े से साफ कर रहा था। धुंध शर्माते हुए सूरज की किरणों में हल हो रही थी और बदबू को कमीन के तेज ने समेट लिया था। धुंध का घूंघट उठते ही सुबह का चांद सा मुखड़ा दिखाई देने लगा। कस्बे के हिजड़े बट कर पंजाबियों के यहाँ और उधर गाने बजाने चले आए। उस वक्त अमरतों के यहाँ जमादारनी सरस बांध रही थी। सुखिया सभी कुछ देखती थी लेकिन उसे सब कुछ काटने को दौड़ता था। सहन के धोए जाने से ये हिले और पिल्ले को चुमकारते हुए बड़े भैया के पास चले आए। लेकिन यहाँ भी यही दिखाई देता था जैसे छुप रहे हैं और अपना चेचक से भरा हुआ चेहरा खुद ही दिखाने से हिचकिचाते हैं। सुखिया के दिल में कुछ रहम सा पैदा हुआ। राम किसी को बदसूरत भी ना बनाए, अपने आप से शर्म आती है। मानती हूँ इसमें उनका कोई कसूर नहीं, लेकिन मेरा क्या कसूर है। मेरी शक्ल से तो औरतें जलती थीं और इनकी शक्ल से तो भूत भी न जलें। बड़ी ननंद मुरादाबादी बर्तन में अचार ले आई। सुखिया ने अपनी पतली पतली उंगलियां कश्मीरी फर्द से बाहर निकाली और अचार की तरफ बढ़ाई। नंद ने भाभी की उंगलियां देखी और फिर अपनी मोटी गोभी के डंठल की सी उंगलियां और बोली, जयराम ने तो कोई मोती दान किए हैं पिछले जन्म में। सरसों की नाड़ की सी नाजुक और लांबी उंगलियां हैं। सच बता सुखिया भाभी, कौन सांचे में ढाली थी तुम? इतना प्रेम, सुखिया सोचने लगी। ये रिश्ते ही कुछ ऐसे होते हैं, आप ही आप इतना प्यार हो जाता है, उसकी खातिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उसके लिए सास ससुर जेठानी देवरानी ननद नंदोई सभी की सहनी पड़ती है। लेकिन जब वही ऐसी सूरत का हो तो किसकी सहेगा आदमी। अफीम का गोला खास हो रहे। तू बर्तन बटाएगी? ननद ने पूछा। सुखिया चुप रही। वो इस रस्म को अदा करने से शर्माती थी। नंद ने सुखिया की ठोड़ी के नीचे हाथ रखा और मुंह को ऊपर उठा दिया। आंखें बंद थीं, जैसे बहुत रस आ रहा हो। होंठ सीप की तरह मिले हुए थे। ऊपर के होंठ की कमान कितनी अच्छी दिखाई देती थी। नंद ने कहा, अच्छी एक बात बता। सुखिया ने सवाल की सूरत में आंखें खोल दी। नंद ने इधर उधर देखा। सब औरतें अपने अपने काम में मशगूल थीं। क्या जयराम ने तुझे देखा है? वो बोली। सुखिया का जी चाहा कि वो पूछे, कौन जयराम, और फिर बड़ा मजा रहे, लेकिन उसने मुंह परे हटा लिया और गठरी होने लगी। नंद एक देहातन थी और ज्यादा ताकतवर। उसने दुल्हन को सुकड़ने न दिया और फिर अपना सवाल दोहराया। सुखिया ने जान छुड़ाने के लिए हाँ में सर हिला दिया। इसी शादी के सिलसिले में किसी रस्म की तैयारियां हो रही थी। शायद वही बर्तन बांटने थे। परात में दूध और पानी मिलाकर कुछ रुपए भी रख दिए गए थे। काका हलवान की गुत्थी ले आए थे। उसमें रुपए ही रुपए थे ताकि सुखिया एक मुट्ठी में जी भरकर रुपए निकाल ले। नंद ने बताया, बहू का हाथ बहुत नाजुक है। काका जी ही जी में खुश हुए। एक हाथ में बहू ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए निकाल लेगी। काका के करीब नंदोई खड़ा था। वो घर का दामाद था। छोटा नंदोई उसका हरीफ नहीं आया था। उस नंदोई ने सर पर मलमल का पूरा एक थान लपेटा हुआ था। नीचे लंबा कोट, वो भी लट्ठे का, और कमर में आधी धोती। उसे बहुत मज़ाका खेज बना दिया था। घर का दामाद होने की वजह से उसकी बहुत पूछ होती थी, वगरना वो फौरन बिगड़ जाता था और उस मोतबर आदमी के बिगड़ने से सभी डरते थे। एक जयराम उससे नहीं डरता था। उसे नंदोई के वजूद से शर्म आती थी।
सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। सुखिया के कमरे की खिड़की से दूर जमीन का ऊंच नीच दोशीजा की उन ढकी छातियों की तरह दिखाई देता था। उन टीलों के करीब किसी खेत की पनेरी सरकी हुई अंगिया सी बन गई थी। जमीन अपनी उरियानी छुपाने के लिए धुंध की चादर लपेटती थी, लेकिन सूरज उसकी सारी चादर को खींच लेता था। आखिर जमीन बेबस होकर पड़ी रही। ये अब और करीब आ गए थे और सुखिया उन्हें अच्छी तरह से देख सकती थी। वो 2 मिनट के करीब एक टक जयराम को देखती रही। जयराम को एक और आदत भी थी। वो पल दो पल के बाद सर को एक झटका सा देता था, जैसे कोई कह रहा हो इधर आ जाओ। शायद इसीलिए जयराम औरतों के करीब नहीं जाता था। 2 मिनट देखने से सुखिया की नजरों में चेचक के दाग गोया धुल गए और जयराम का चेहरा बेऐब दिखाई देने लगा। सुखिया सोचने लगी, जिस तरह 2 पल देखते रहने से वो चेहरा साफ दिखाई देने लगा है, सारी उम्र साथ रहने से शायद यही मुंह इतना मानूस हो जाए कि चेचक के दाग देखते हुए भी दिखाई न दे। हौले हौले दोपहर हुई, दिन ढलने लगा। सुखिया ने काका की गुत्थी में हाथ डाला, अपने हाथ को पूरा फैलाया और 80-85 के करीब रुपए निकाल लिए। सब औरतें लगी, बहू बड़ी चालाक है, ए काका संभाल के रखियो अपनी गुत्थी को, बहुत खर्चीली बहू आई है। दूसरी बोली, इतना कमाया है काका ने, दूध से 7 पुष्ट से, और काका क्या धन को समाधि में ले जाएगा। घर की अम्मा अपने काका को बचाने के लिए निकल आई, मेरा जयराम क्या कम कमावे है, 3 20 से ऊपर एक पावे है रेलवाई में, 2 जीव हैं, कोई बूझ नहीं बाज नहीं, खावे मौज उड़ावे। अच्छा हुआ सुखिया को भी उनकी आमदनी का अंदाजा हो गया। तनख्वाह तो इतनी बुरी नहीं थी, आजकल कहाँ 61 रुपए मिलते हैं। उन्होंने 14 जमातें पढ़ी हैं तो कौन सी बड़ी बात की है। सुखिया के चचेरे भाई ने 16 पढ़ी थी, ऊपर से कानवोन और सूबे का कोना कोना छान मारा। आखिर एक ठग कंपनी में नौकर हो गया। उसके बाद बर्तन बांटने थे, लेकिन जयराम ना आए। शायद उन्हें सुखिया की नफरत का पता चल गया था और वो अकेले में अपनी सूरत को कोस रहे थे। महरिया अपनी ही गजल यानी गजल गा रही थी। सुखिया ने कहा, अपजस की मत। और जयराम को यही महसूस होता था जैसे गाना उसके हस्बे हाल है। जो भी सुनता था महरिया को यह गाना गाने से रोकना चाहता था, लेकिन रोकने से पहले हर मर्द औरत को उसमें अपनी ही जिंदगी दिखाई देती थी और वो महरिया को डांटते डांटते आप उसके रस में गर्क हो जाते। सुखिया ने जयराम को तसव्वुर में अपने करीब आते देखा। उस वक्त सुखिया को कमर से नीचे सारा जिस्म जलता हुआ महसूस होने लगा, या फिर कानों की कनौतियां फड़क रही थी। यह अगन इतनी जबरदस्त थी कि उसमें चेचक के सब दाग भस्म हो गए थे। दाग तो एक तरफ, अगर चेहरा हबशी का सा होता तब भी सुखिया को कुछ महसूस न होता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, और या फिर आग के शोले थे जिसमें एक मर्द और औरत के मुजस्समे कुंदन की तरह दहकने लगे थे। इन्हीं ख्यालों में सुखिया जयराम की शक्ल को भूल चुकी थी। वो बहुत सी बातें भूल जाती थी। उसे रह रह कर ख्याल आता, वो रस्म पर आए क्यों नहीं, जरा रौनक हो जाती। अगरचे दिल नफरत से दग दग करने लगता है, लेकिन ऐसी नफरत का और क्या इलाज है। यही ना कि और करीब हो जाए आदमी और किसी की तमाम खामियां खूबियों में तब्दील हो जाएं। वो नहीं आए, उन्हें कैसे पता चल गया कि मुझे उनसे नफरत है। सुखिया सोचने लगी, जो ही मैंने मुंह के दाग उड़ते देखने चाहे थे, तो ही वो चेहरे से उड़ गए। अब आंगन में टहलने वाले का मुंह फिटकार की तरह दिखाई ना देता था, और यह अज़दवाजी जिंदगी का पहला दिन था, और वो चेचक के दागों को इतना भूल गई, इतना। दूध रसोई में तसले पर एक कौड़ियाले सांप की तरह बल खाता हुआ आग में गिरने लगा। होरी अपजस की गठरिया, अम्मा ने महरिया को आवाज दी। का होगा वा तो को, दूध उबलता हुआ ना दिखे रांड, और पैसे मांगने को सर पर चढ़ी चली आवे। पैसे ना दूंगी, राग झोंक दूंगी मुंह मां। और मुंह पिलपिलाते हुए मुंह के साथ न जाने क्या कुछ कह गई। ढोर शाम के करीब फाटक के अंदर दाखिल हो चुके थे। दूध भी दोहा जा चुका था। पीतल के दोने तख्तपोश पर रखे हुए थे। काका दामाद की मदद से तख्तपोश पर बैठे एक लाल जिल्द वाली बही पर जल्दी जल्दी कुछ लिख रहे थे। ऐनक बार बार मुंह पर गिरती थी। ऐनक के किनारे एक कुंद सफेद रंग के हो गए थे। कमानी की जगह एक धागा कान तक चला गया था, और टूटे हुए शीशे में से कभी कभी एक आदमी के दो दो दिखाई देने लगते थे। घर की औरतों में हल्की हल्की खुसुर फुसुर हो रही थी। वो कड़ी निगाहों से जयराम की तरफ देखती थी। सुखिया का माथा ठनका, वो क्यों ना आए। सुखिया ने फिर अपने आप से सवाल किया, और उसका दिल धड़कने लगा। उसे फिर मातन हील याद आया, फिर जयराम। सभी औरतें जयराम को कुछ कह रही थी। घर की अम्मा की तरह सुखिया को भी जयराम की तरफदारी करने का ख्याल पैदा हुआ, लेकिन सुंदर चेहरे पर अगर काला दाग हो तो चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।
مرد کماؤ ہو، شریف ہو، صحت مند ہو، تعلیم یافتہ ہو تو پھر چیچک کے داغ اس کی سندرتا ہو جاتے ہیں، اور سکھیا اب تک ان چیچک کے داغوں میں خوبصورتی پا لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ رات ہوئی، سر جوڑی کے لیے جے رام کی تلاش ہوئی، لیکن جے رام غائب تھا۔ بڑی نند گھبرائی ہوئی آئی اور بولی، سکھیا بہن برا نہ منانا، جوانی میں سبھی ہٹ دھرم ہوتے ہیں۔ سکھیا بولی، کیا ہٹ دھرمی ہے؟ یہی بچپنا ہے نا، تھوڑا وقت گزر جائے گا تو آپ ہی آپ سمجھ آ جائے گی۔ سکھیا حیرت سے نند کے منہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جی یہ کیا باتیں ہیں، میری سمجھ میں تو نہ آوے۔ کوئی بات بھی ہو، نند بولی، جے رام کالج کا پڑھا ہوا ہے نا، اسے خیال ہے کہ سکھیا کا ناک لمبا ہے، اسی لیے وہ رسم پر نہیں آیا، اور اب کہاں لمبا ہے ناک تمہارا، تھوڑا وقت گزر جائے گا تو آپ ہی آپ۔ سہاگ رات اپنے تمام دھڑکے کے ساتھ سر پر آ رہی تھی۔ سکھیا نے چیچک کے داغوں کو معاف کرنے کی حد سے پرے جا کر اس میں حسن تلاش کر لیا تھا، لیکن جے رام اس کی ناک کو معاف نہ کر سکا، اور رات سرد، اداس، بے خواب رات گزرتی گئی۔